So one question was like this: ki if we are having AgNO3 and we are mixing it with Ki, let's say suppose this is 0.1 molar and this is 0.4 molar. AgI is going to form, and let's say they are saying ki AgI is forming colloidal solution. Okay. I know everyone knows that AgI is formed precipitate, but this precipitate can convert into colloidal solution because of excess Ki. How? So this AgI can adsorb either Ag plus or I minus. Since in the solution electrolyte is present, the I minus is going to adsorb on the surface of AgI. The excess, you know. See what will happen. Initially, we have taken 0.1 molar and 0.4 molar, and we know that this reaction will happen. So AgNO3 will completely consumed, right? Zero. This will be 0.3 molar, and this is going to form 0.1 molar. At 0.1 molar, this precipitate, what will happen? This I minus is going to adsorb, right? So this I minus is going to make it. So they can ask the question. So this dispersed phase is going to be negatively charged or positively charged. So answer is going to be negatively charged, right? Now similar question can be asked if the concentration of AgNO3 is more. Let's say we are having 0.4 molar over here and 0.1 molar over here. Then what will happen? Then again AgI will form, right? And we know that this is going to remain 0.3 molar in solution, completely consumed, and 1 molar, 0.1 molar. So what will happen? The AgI is going to adsorb Ag plus ion. So you can see by varying the concentration, the nature of this colloidal solution will change. Then it is going to be positively charged. So you have to remember this part. Negatively charged means the colloidal particles are having negatively charged, right? And that's how the two different, let's say, particles cannot aggregate together because these I minus will repel each other, and that's how this precipitate will break into colloidal solution. This is what we have seen now. Precipitation means coagulation of colloidal solution, है ना, इकट्ठा हो जाएगा ये, aggregate बन जाना. But if we are having Ki in excess or AgNO3 in excess, what can happen is इस पे selective adsorption होता है. किसका adsorption होता है? So you have to remember, जो भी ये कंपाउंड बन रहा है उसी वही आयंस एब्जॉर्ब हो सकते हैं, है ना. तो आइदर I माइनस और Ag प्लस. कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, 2-3 बार पूछा जा चुका है. सिंपल क्वेश्चन है, बट है ना कि कौन सा होगा, नेगेटिवली होगा, पॉजिटिवली होगा. Just have to see the reaction. You have to see which one is in excess and accordingly. Okay. In general sense, we have given some information over here. Ki if you are having hydroxide, then it is going to be positively charged because hydroxide is going to adsorb metal ion. So Fe3 plus is going to adsorb. If Al2 ALOH whole thrice is there, then Al3 plus is going Al3 plus is going to absorb like this. Or metal and metal sulfides are there, then it is going to be negatively charged. Metal पे ये है ना negative ions आके absorb होते हैं, तो ये याद रखना है. Negatively charged salts are there, ये positively charged salts है. अब क्या होता है जब ये ऐसा बन जाएगा, since the solution is neutral itself, right? क्योंकि ये ऐसा अगर बन गया I minus, तो what will happen? There is going to be a say double layer formation. So this AgI, let's say, that is adsorbed by I minus. तो इसके चारों तरफ ऐसे क्या हो जाएगा, right? K plus. So this is called a double layer. So this is going to be a double layer formation. Now, can you see that there is a potential difference? If you can see, this is I minus and K plus. It's kind of a conductor, right?
एक ये प्लेट है इमेजिनरी सरफेस, एक ये लेट्स से लेयर है. So the potential difference between these two layers is called zeta potential. है ना, potential difference between disperse phase and disperse medium is zeta potential. So we have seen some new terms like Kraft's temperature, CMC. CMC is critical micelle formation, and Kraft temperature at which this micelle formation takes place. So all this information, all these new terms, just keep in mind. Okay, right? So this is what I'm saying. Ki you have to remember. It could be positively charged or negatively charged. Some more you can remember, like basic dyes are positively charged. So right. So just to remember, you can relate base to metals, right? Metals are having positive charge. So it is very difficult to, you can always confuse, right, between basic and acidic. So basic are, let's say, metals. Metals are having positive charge. So like that, you just relate. And acidic dyes are going to have negative charge solved. And these starch, gum, gelatin, ye, clays, charcoal, ye, all these are starch, gum, gelatin, all are lyophilic colloidal solution. They forms lyophilic colloidal solution. So lyophilic salts are there. So these are also forming, let's say, negatively charged oxide, negatively charged salts. So ये याद करने के तरीके हैं, थोड़ा सा थ्योरी है. Just remember that part. So this part I have already completed, right? जो भी मैंने आपको बताया preferential adsorption. ठीक है. So just go through it. And then I have told you the potential difference between fixed layer and diffuse layer of opposite charges called zeta potential. Now, what is electrophoresis? Electrophoresis का मतलब ये होता है movement of, let's say, charged particles. So we have seen this part. ठीक है? We have seen this part कि in the solution we are going to have a negatively charged, let's say, dispersed phase, है ना, negatively charged dispersed phase, and then the other, let's say, component K plus in the medium, right? So we are having two charges, plus and minus. So if we are going to apply electrode potential, what will happen? The particles are going to move. So they can ask this question also, like आगे भी पूछ सकते हैं, right? This type of question they can ask, tell me that dispersed phase will move towards, है ना? If we are applying, let's say, electrode potential, dispersed phase will move towards, है ना? So dispersed phase is, so you have to identify, okay, dispersed phase is negatively charged. It is going to move towards positive electrode. It is going to move towards positive electrode. Getting it? ठीक है? Positive electrode is anode or cathode? Positive electrode is anode or cathode? So generally जब हम बात करते हैं तो हम, right, anode means electrode towards which anion will move, right, negatively charged. Anode is having positive charge. ठीक है? So in general sense, this is the, let's say, do not get with the confused with the battery wala part, right? So the movement of colloidal particle. Now I'm not, let's say, reading one let's say line, so it becomes a monotonous. I'm just telling you. You will just read by yourself. If what is given, I will tell you the highlighted point. The movement of colloidal particles under the applied electrical potential is called electrophoresis. है ना? The movement of colloidal particle. Positively charged particle move towards cathode. Positively किसकी तरफ जाएंगे? Negative की तरफ जाएंगे, which is cathode. And negatively charged particles move towards anode, right? यहाँ पे ये आपको समझ लेना है. Let's say तो जैसे मान लो एक इमेजिनरी, आप समझ लो कि यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन भर दिया है, ये पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन आपने भरा हुआ है, राइट?
अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन की अच्छी बात यह है कि पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है, तो राइट मतलब ये पूरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, ऐसे सेडिमेंट या फिर सस्पेंशन टाइप नहीं बनाता है ना, तो सस्टेन हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो वो दे आर गोइंग टू बी सस्टेन इन द मीडियम। तो अब जैसे मान लो आपने यहाँ एनोड डाला, व्हाट विल हैपन, एनोड और कैथोड ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आपने लगा दी, देन व्हाट विल हैपन, जो भी आपका लेट्स से डिस्पर्स फेज होगा, राइट, वो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है, राइट, है ना, ये ऐसे दिख जाएगा। अब यहाँ पे जब ये ऐसे इकट्ठा हो गया तो बताओ ये क्या हुआ, कोगुलेशन हो गया ना, प्रेसिपिटेशन टाइप, सब एक साथ इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है भागते हुए, राइट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से मिलके न्यूट्रल हो जा रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव है तो इट इज गोइंग टू बी, सो सब ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये पूरा आपका है ना प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, राइट। और फिर ये अगर ये इधर मूव कर रहा है तो मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम में जो आयंस होंगे वो किधर मूव करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि भाई देखो किस तरफ जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, किधर प्रेसिपिटेट बन रहा है, राइट, यू कैन सी कोगुलेशन किधर हो रहा है, उससे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के नेचर का भी पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात, किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें एक और टर्म है, ठीक है, when electrophoresis movement of particle prevented by suitable means, it is observed that dispersion medium is move, है ना, it is observed that dispersion medium begins to move in electric field, this phenomena is termed as electroosmosis। तो ये एक और टर्म है, इसको भी आप देख लो। so the phenomena is, है ना, movement of particles अगर हमने प्रिवेंट कर दिया, राइट, तो प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि वी हैव लेट्स से पुट समथिंग ओवर हियर जिसके कारण ये इधर मूव नहीं हो पा रहा है, बट मीडियम के पार्टिकल तो मूव हो रहे हैं, राइट। मीडियम का मतलब है के प्लस वगैरह जो था वो, इट इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन आपको पता ही है ना, एक साथ इकट्ठे हो जाना, इसका मतलब कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन, तो वी आर मूविंग। ये कैसे हो सकता है, हाउ वी आर एबल टू गेट इट, बोलो सुशील। वैसे वो डायग्राम में पॉजिटिव एनोड होना चाहिए ना, पॉजिटिव एनोड होना चाहिए, नहीं ये बैटरी के वो लगाए हुए हैं, बैटरी वाले हैं ये, ठीक है, ओके सर। हाँ ये हाँ वाले, हाँ बोलो धनी। सर सर जो आपने AGI वाला एग्जांपल लिया था, अगर दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन होता, दोनों 1 मोलर होते, तब फिर थोड़ी ना हो पाता, तब तो आयन इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तब तो प्रेसिपिटेट होना ही है भाई। ये वो पेप्टाइजेशन वाला मेथड क्या था कि किसी प्रेसिपिटेट को, है ना, किसी भी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में तोड़ना, ये है पेप्टाइजेशन, है ना, कोगुलेशन का उल्टा। तो मान लो AGI आप ये 0.1 मोलर लिया, ये 0.1 मोलर लिया, AGI का प्रेसिपिटेट बना, एंड द इमीडिएटली यू हैव एडेड सम मोर KI, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे I माइनस इस पे एब्जॉर्ब होगा और फिर ये थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा। बट ऑब्वियसली पेप्टाइजेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है, उससे बेटर है कि पहले से ही मतलब आप डाल के रखो, सो दैट प्रेसिपिटेशन विल नॉट हैपन। एंड जो आपने डबल लेयर फॉर्मेशन वाला बताया था सर, इसमें डिस्पर्शन फेज K+ है ना? नहीं, मीडियम है K+ के, तो ये है डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, उस पे ये I माइनस ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये मीडियम के हैं, ये मोबाइल फेज है ना, K+ इज मोबाइल फेज। ओके, सो इसमें डिस्पर्स फेज AGI होगा एंड डिस्पर्शन मीडियम I- होगा, तो K+ के लिए नहीं, मीडियम नहीं हो, अरे इस पे ये एब्जॉर्ब है भाई, मीडियम का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कौन घूम रहा है, K+ घूम रहा है ना, यस ये सर, तो एब्जॉर्ब हो गया, इस पे फिक्स हो गया ना। हाँ हाँ, तो ये एक लेयर बन गई, एक लेयर जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक लेयर, एक इमेजिन मतलब मोबाइल फेज में एक लेयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस आ गया ना। यस सर, थैंक यू सर। So now they are saying कि कैसे हम लेट्स से कोगुलेशन कर सकते हैं,
एंड प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है, तो सिंपली मीनिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हमने देखा था, जो भी पार्टिकल्स जा रहे हैं यहाँ पे जाके न्यूट्रल जा रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर चार्ज एंड द प्रेसिपिटेशन विल हैपन. So I'm mixing two opposite charge salts. So let's say अगर मान लो ये AgI का ये सॉल्यूशन ही है और इसमें हमने नेगेटिवली चार्ज सॉल्व यहाँ पे है और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है और वी हैव मिक्स दैट, तो ये प्लस और माइनस आपस में मिलके फिर से है ना एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे एंड देन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. तो अपोजिटली चार्ज सॉल्व जब मिक्स करे जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेस देयर चार्ज, राइट. बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब है टक्कर, कोलाइड कराना बार बार. तो जब हम बार बार कोलिजन कराएंगे तो फिर क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये है ना एक दूसरे से चिपकते जाएं. परसिस्टेंट डायलिसिस, ये कल बताया था. डायलिसिस का मतलब है कि डिफ्यूजन के कारण मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिफ्यूजन के कारण अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पूरा निकल जाएगा तो फिर चार्ज खत्म हो जाएगा. इसी तरह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो वी आर गोइंग टू फोकस दिस पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यही है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा भी है, राइट, वी आर हैविंग I माइनस. लेट्स से हम यहाँ पे कोई सुटेबल लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं. लेट्स से वी आर पुटिंग सम Fe3+ काइंड ऑफ, ठीक है. तो जब वी आर गोइंग टू पुट Fe3+ तो ये I माइनस इसकी तरफ खींचने लग जाएंगे, राइट, बिकॉज है ना ये Fe3+ स्मॉल साइज है, चार्ज ज्यादा है, तो I माइनस विल हैव मोर लेट्स से अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस Fe3+. एंड व्हेन दिस विल हैपन, जब भी हम जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो फिर देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ये AgI से धीरे धीरे चार्ज है ना हटने लग जाए. AgI से चार्ज हटेंगे तो AgI तो आपस में कंबाइन होके प्रेसिपिटेट बना लेंगे, है ना, सब एग्रीगेट हो गया है. कंबाइन होने का मतलब है ये सब पार्टिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल सब जुड़ते गए एग्रीगेशन हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया. सो दैट इज है ना, दैट इज ओवर हियर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर हम कोई सुटेबल लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है. अब इसमें आती है बात कि कोगुलेशन किससे ज्यादा होगा, है ना. तो देयर इज अ टर्म कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेटिंग पावर, किसकी पावर ज्यादा है. सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, है ना. अगर हमें नेगेटिवली चार्ज सॉल्व को कोगुलेट करना है तो Al3+ जिसका चार्ज ज्यादा है ना, चार्ज बाय साइज हमेशा याद रखना है, पोलराइजेशन इज नथिंग बट charge by size, right? So which one is dominating factor? Charge. But let's say if two let's say giving two let's say क्या बोलना चाहिए, ions are given, both are having same charge. Let's say one is given as Mg2+ and another one is giving calcium2+. Which is going to have more let's say power, जिसका size छोटा है, right? Which is having smaller size. But mainly what is going to dominate? Charge is going to dominate. So Al3+ is going to have more let's say flocculating power than Ba2+ over here या फिर Mg2+ than Na+. ये मेरी बात समझ में आ रही है? That is called Hardy-Sulzer rule, right? The coagulation power for negative salt जिसमें negatively charge है, उसमें अगर आपको देखना है तो किसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी. ऐसे ही अगर मान लो पॉजिटिव देखा जाएगा तो फिर हम देखेंगे जिसपे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो. ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैन बी लाइक FeCN6 4-, and then you can have some 3-, PO4 3-, then you can have SO4 2-, or you can have Cl-, like that you can also have है ना चार्ज. तो पावर आपको समझ में आ रही है. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वी कैन आइडेंटिफाई. अब इसी में बात आती है कोगुलेटिंग वैल्यू. वैल्यू इज द टर्म कि किसके कितने मिलीमोल्स डाले हम, कि ये अबव लेट्स से कोई भी लायो लेट्स से फोबिक जो सॉल है नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, वो जो है प्रेसिपिटेट बन जाए. दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू, है ना. सो जस्ट बी वेरी क्लियर विद द पावर एंड द वैल्यू टर्म. तो आपको समझ में आ रहा है Al3+ की पावर ज्यादा है, तो बताओ Al3+ कम डालना पड़ेगा, ज्यादा कम डालना पड़ेगा या ज्यादा कम डालना पड़ेगा. सबको समझ में आ रहा है ना ये बात. सो कम डालना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम. कोगुलेटिंग वैल्यू, राइट, कम. तो दैट्स इट. ओवर हियर कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, है ना, मिलीमोल्स पर लीटर.
required to cause precipitation of salt in 2 hours is called coagulating value. ठीक है, smaller the quantity need, higher will be coagulating power of ion. तो ये काफी अच्छा रिलेशन हो गया. Coagulating power is inversely proportional to coagulating value. ठीक है, चलते हैं आगे. अब इसमें आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ दिस, लेट्स से coagulation, how we can protect it, है ना, protection of colloids. Right. So coagulation of lyophilic salt. Lyophilic salt का मतलब क्या है? जो पानी में soluble है, इनको कैसे coagulate कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली पूरा का पूरा पानी हटा ही दो, ठीक है, पूरे की तरह से, एंड देन दिस इज गोइंग टू लेट्स से प्रेसिपिटेट ही रह जाएगा, राइट. तो हो सकता है आपका, या फिर आप ऐसा कोई सुटेबल लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे हमने देखा था जिलेटिन स्टार्च पे नेगेटिव चार्ज था, है ना, नेगेटिवली चार्ज थे ना, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है ना, जिलेटिन स्टार्च वगैरह. तो इफ वी आर गोइंग टू ऐड सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो भी आप क्या हो सकता है कि उसमें लेट्स से दे आर गोइंग टू, है ना, ये चार्ज हट जाएगा इनका, तो दे प्रेसिपिटेट. फिर इन्होंने लिखा है यहाँ पे बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट. सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि जैसे लायोफिलिक जो है वो किसी पर्टिकुलर में फिलिक है, बट अगर हम एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दें जिसमें वो फोबिक हो जाए, ठीक है, जिसमें राइट, जिसमें वो फोबिक हो जाए, तो फिर कोगुलेशन हो सकता है. तो कोगुलेशन का मतलब तो हो गया प्रेसिपिटेशन. दो तरीके हैं, है ना, लायोफिलिक पे भी चार्ज होता है, जैसे हमने देखा था स्टार्च, गम, जेलेटिन पे, राइट, उन पे नेगेटिव चार्ज है, सो वी आर गोइंग टू ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट, तो उनका चार्ज हट जाएगा, दे आर गोइंग टू प्रेसिपिटेट. अब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो हमें ये पता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में लायोफिलिक्स आर मोर स्टेबल. किसी का माइक ऑन है भाई, अपना माइक ऑफ कर लो. सर्वम देसाई, चलो ठीक है. कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जो नहीं सुन पा रहे हैं मैं भगा दूंगा. रेज योर हैंड, जो नहीं सुन रहे हैं वो भगा दूंगा मैं. भाई ज्वाइन क्यों करते हो यार, तुम लोग मत करो ना ज्वाइन, जो किसी ने जबरदस्ती बैठाया हुआ है क्या? वैसे भी लास्ट वीक चल रहा है ये तुम्हारा. देखो अभी 43 आ रही है. सबको बैठाऊंगा मैं वेटिंग रूम में. एक सरदार था, वो कहाँ गायब हो गया, आजकल दिखता नहीं है. क्या नाम था? चास्करन, हाँ. चलो अभी प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ. सो वी नो दैट लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, देन लायोफोबिक. लायोफोबिक तो स्टेबल तभी हो पा रहे हैं जब उन पे चार्ज आ रहा है, राइट. लायोफोबिक आर अनस्टेबल, ठीक है. एंड इन लायोफोबिक
let's say हाँ you can lower your hand. तो होता ये है कि हमें अभी पता था कि अगर हम कोई सुटेबल लेट्स से इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है. बट इफ समथिंग गोज लाइक दिस कि ये जो लायोफोबिक है, लेट्स से लायोफोबिक है, इसके चारों तरफ लायोफिलिक लेट्स से इसको सराउंड कर ले लेट्स से समवेयर, राइट. इफ दिस विल हैपन, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, इसको लायोफिलिक जो है ना इसको सराउंड कर ले, है ना, फोबिक को, फिलिक ने लेट्स से, है ना, सराउंड कर लिया, then can you say that the stability will increase of phobic. ठीक है, तो जो ये फिलिक हैं, फिलिक आर गोइंग टू प्रोटेक्ट फोबिक और इनका कोगुलेशन. अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, हाउ, लेट्स से वेदर विच लेट्स से फिलिक सॉल, लायोफिलिक सॉल इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी लाइक दैट. तो कैसे चेक करते हैं, तो उसमें एक डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसका कोगुलेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया या नहीं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. ठीक है, तो गोल्ड नंबर ये है कि इसके लिए जनरली हम गोल्ड सॉल ले लेते हैं. गोल्ड नंबर इज डिफाइंड फॉर गोल्ड सॉल, जैसे समझ में आ भी रहा है, और उसकी भी गोल्ड सॉल की जो गोल्ड सॉल की एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, लेट्स से 10 ml 10 cc, और उसमें हम देखते हैं कि हमें कितना लायोफिलिक सॉल्ट डालना पड़ेगा. लायो गोल्ड सॉल्ट, मेटल सल्फाइड सॉल्ट, ऑल आर लायोफोबिक, है ना. तो अभी हम यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट पे चेक कर रहे हैं. गोल्ड सॉल्ट इज ए लायोफोबिक सॉल्ट. इस पे देख रहे हैं कि कितना हम लायोफिलिक सॉल्ट डालें, है ना. लायोफिलिक सॉल्ट मतलब स्टार्च, है ना, जिलेटिन, ऐसा कुछ कितना डालें, सो दैट इसके 10 ml का कोगुलेशन, है ना, 1 ml of 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट से, है ना, प्रिवेंट हो जाए. Are you getting? Two things are there, है ना. थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ से बना लेते हैं, लेट्स से. तो पहले मैंने आपको बोला कि लायोफोबिक आर लेट्स से अनस्टेबल एंड फिलिक आर स्टेबल. सो दिस कैन हैपन कि यार फोबिक के ऊपर फिलिक का, है ना, एड्सॉर्प्शन हो जाए, या इसको सराउंडिंग कर ले, ये ऐसे, है ना, जस्ट सराउंड कर ले, सॉल्वेटेड कर ले इसको, है ना, इसके बीच में फंसा ले. अब इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट. अब मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ एंड आई एम जस्ट वांट टू चेक कि यार ये प्रेसिपिटेशन बचा पाया है या नहीं बचा पाया. द इलेक्ट्रोलाइट इज स्टैंडर्ड फिक्स, कितना है, 1 ml ऑफ, है ना, 10% NaCl. ये इलेक्ट्रोलाइट किस में डाल रहे हैं, ये भी फिक्स है ना. कौन सा सॉल है, गोल्ड सॉल है, एंड दैट इज 10 ml. ठीक है, अब हम बस ये देख रहे हैं कि कितने मिलीग्राम इसके हमें डालने पड़े, क्या मिलीग्राम्स ऑफ, है ना, लायोफिलिक सॉल, and that is the value is going to called as gold number. चलो अभी इतना वो समझ में आ रहा है. So that's it, that's the important point over here. ठीक है, over here I think they have not given, they just said कि ये property होती है. I think module में दे रखा होगा. So just go through the module part. एक मिनट, कौन सा चैप्टर है इसमें, second 91. Theory over here, सब हो गया, right? We have done this part. Okay, this is so the number of milligrams of protective colloid that just prevent the coagulation of 10 ml of standard gold sol, है ना. 10 ml standard gold sol क्या है, ये लायोफोबिक सॉल है.
when 1 ml of 10% NaCl is added to is called gold number. जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम होगी, राइट, रिमेम्बर, है ना, जिसको ज्यादा अमाउंट डालना पड़ा, है ना, जिसके ज्यादा मिलीग्राम डालने पड़े, इसका मतलब क्या है, उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है. तो गोल्ड नंबर इज ऑल्सो लेट्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. इसमें बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर लेट्स से ना प्रोटेक्टिव सॉल, तो बताओ कौन सा होगा सबसे बेटर. ये वैल्यूज दे रखी, गोल्ड नंबर्स दे रखी, ठीक है. सो जिलेटिन, राइट, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, है ना, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम, दैट इज गोइंग टू बी बेटर लेट्स से सॉल टू प्रोटेक्ट. ये जेल ये सब पढ़ लेना आप लोग, है ना. यहाँ पे एक मिनट, वी आर गोइंग थ्रू लेट्स से इमल्शन, जिसमें कुछ नहीं है, दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, जस्ट रीड इट, ठीक है. सरफेस केमिस्ट्री डन, एप्लीकेशन वगैरह देखना है. तो इसमें 3-4 चीजें जो टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट थे. हार्डी-सुल्जे रूल, व्हाट इज गोल्ड नंबर, राइट. गोल्ड नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीजें सेम होनी चाहिए. इफ लेट्स से समवेयर इट इज नॉट गिवन, अगर ये वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, लेट्स से 1 ml ऑफ 10% NaCl नहीं दे रखा है, देन यू आर गोइंग टू चेक. जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 ग्राम इन, है ना, 1 ml ऑफ 1 मोलर, लेट्स से ऐसा कुछ दे रखा है, molar NaCl solution. So you have to convert this concentration into percentage weight by weight. 10% NaCl का मतलब क्या है, weight by weight में आपको convert करना पड़ेगा. So you have to see कि 10 ग्राम NaCl है ना 100 ग्राम solution में, right, इस तरह से. तो अगर they have not given the density, then you can, अगर density नहीं दे रखी है तो इसको weight by volume से निकाल लेना, क्योंकि density 1 मान लेते हैं, है ना, 100 ml लेके मोलैरिटी दे रखी है. सो गेट सम आइडिया, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये इतने में से है तो 10% में कितना होगा. सो यू कैन हैव सम आइडिया, राइट. तो क्वेश्चन जो गोल्ड नंबर के हैं वो ऐसे ही बनते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू चेंज द कंसंट्रेशन टर्म एंड दे विल आस्क, ठीक है. ओके, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जो अपने सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में दे रखा है. I will get it done over here only. जो भी ये लिखा हुआ है मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. So know that, तो ये सरफेस केमिस्ट्री में अगला पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला. तो हमें पता है कि कई सारे लेट्स से आइसोटोप जो है वो अनस्टेबल हैं. सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो सो दैट जिसको अगर डाउट है देन ओनली समबडी कैन आस्क. वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, जनरली वेट बाय वेट यूज होता है. अगर मोलैरिटी दे रखी है तो वेट बाय वॉल्यूम ही लगाना पड़ेगा. इफ दे हैव नॉट गिवन डेंसिटी, तो डेंसिटी 1 मान लेते हैं ऐसे टाइप पे, है ना. वाटर की जो भी सॉल्यूशन है सबकी डेंसिटी 1 मान लेते हैं. ये प्रॉब्लम है. ये जनरली वेट बाय वेट होता है, ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसे मान लो रेडियो एक्टिविटी दे रखी है, तो वी नो दैट कि सर्टेन आइसोटोप्स आर अनस्टेबल, और हमें ये भी पता है कि 83 के बाद लेट्स से ऑल, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे आइसोटोप अनस्टेबल है. मतलब 83 तक तो कम से कम एटलीस्ट 1 आइसोटोप इज देयर व्हिच इज स्टेबल, है ना, एटलीस्ट 1 इज देयर. 83 के बाद जितने भी एलिमेंट है उनके सारे आइसोटोप अनस्टेबल, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि 83 से पहले जितने भी एलिमेंट है उनके आइसोटोप, है ना, उनके आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं हो सकते, है ना. वी नो दैट कार्बन 14, है ना, ट्रिटियम, ऑल दीज आर रेडियो एक्टिव, है ना. ये रेडियो एक्टिव है, ये तो कॉमन है, पता है. सो व्हाई लेट्स से सर्टेन आइसोटोप का मतलब हम यहाँ पे फोकस करेंगे न्यूक्लियस पे, बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग, दिस स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी हैज समथिंग टू डू विद न्यूक्लियस ओनली, है ना. एटम में अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, राइट. इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी एलिमेंट एटमॉस्फेयर से निकाल लेता है ना. इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है कि अपनी लेट्स से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत सारे. ओनली थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, तो जैसे अगर किसी ने बोला
कि यूरेनियम है 92 प्रोटॉन है, राइट, ये 92 प्रोटॉन से 90 प्रोटॉन हो गए तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, यूरेनियम से ये थोरियम बन गया, राइट। तो so the only thing which we are focusing right now is nucleus. So certain nucleus are unstable. अब उनमें आता है कि भाई कैसे पता लगाएं कि कौन से न्यूक्लियर स्टेबल है और कौन से अनस्टेबल है। So there are certain, let's say, we can say certain approaches or certain let's say law kind of a thing कि जो बता रहे हैं कि भाई इससे स्टेबिलिटी बताई जाती है। तो उसमें पहली है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? The energy which is going to bind all the protons together, है ना। protons, we know that protons are positively charged and they are going to repel each other, है ना। एक साथ 92 प्रोटॉन्स को हमें एक साथ बाइंड करके रखना है, या फिर आयरन है तो 26 प्रोटॉन्स को हमें बाइंड करके रखना है ना, जोड़ के रखना है। तो कुछ एनर्जी, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी खत्म होगी, that is going to be binding energy. How this binding energy is actually come up because of mass effect. तो you would have remembered कि अगर हम जैसे मान लो if we are taking the example of iron itself, तो आयरन में अगर हम देखेंगे, लेट्स आयरन को नहीं लेते हैं, चलो ठीक है आयरन ले लेते हैं। तो आयरन में बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 26 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 56, तो 30 न्यूट्रॉन है एंड वी नो दैट 36 इलेक्ट्रॉन भी है। तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हमें आयरन का मास निकालना पड़े, सो व्हाट वी हैव टू डू कि हम क्या करेंगे, 26 प्रोटॉन है तो उनका एक प्रोटॉन का मास निकालेंगे 1.67 लेट्स से 2, है ना, इनटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा ये 24 ग्राम, प्लस 30 इंटू 1.65675 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, प्लस 26 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 gram. So that is going to be total mass, or we can convert into AMU also. ठीक है। But if you would see that this mass is not equals to atomic mass, ये हमने बात कहाँ करी थी, right? हमने करी थी पहले चैप्टर में। I have told you कि ये ऐसा नहीं होता है, right? देखो याद है ये बात कि ऐसा नहीं होता है, right? ये this is not equals to the atomic mass always is somewhat less than this the total, like let's say sum of all these masses. ये हमेशा कम रहता है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब यही है कि जो टोटल मास आएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया हीलियम का, तो दे आर चेकिंग द लेट्स से मास डिफेक्ट फॉर हीलियम। तो मास ऑफ 2 लेट्स से इलेक्ट्रॉन का निकाला, प्रोटॉन का निकाला, न्यूट्रॉन का निकाला, एक्सपेक्टेड मास निकाल लिया इन तीनों को जोड़ के, इतना आना चाहिए। बट एक्चुअल मास, एटॉमिक मास कितना है? इतना है। सो यू कैन सी कि ये जो है देयर इज सम डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस है उसको क्या बोला गया? डेल्टा एम मास डिफेक्ट। Now according to Einstein, this mass defect is going to convert into energy by E equals to mc square, है ना। ये जो मास डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। So this whole energy is actually binding the nucleus, and that is called binding energy. And there is a term binding energy per nucleons, है ना। इन सारे न्यूक्लियस में इन सारे लेट्स से पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सो यू कैन रिमेम्बर कि 1 AMU के मास डिफेक्ट के लिए 935 किलो मेगा, लेट्स से आई थिंक मेगा आता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 AMU मास डिफेक्ट के लिए इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 935, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना मतलब एनर्जी रिलीज होती है जस्ट बाय यूजिंग दिस E equals to mc square we have calculated. अगर यहाँ पे कितना मास डिफरेंस आया है? 0.032020, राइट। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लेट्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई, अच्छा ठीक है, इतना यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 4 न्यूक्लियॉन्स के लिए, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स है, तो पर न्यूक्लियॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, ये 931.5 है, सॉरी नॉट 935, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये याद रखना है 1 AMU के लिए। सो बाइंडिंग एनर्जी यू कैन जस्ट कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग इट एंड देन यू कैन कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इन्होंने ये निकाल दी 28.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर न्यूक्लियॉन निकाल दी। जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा आएगी वो उतना स्टेबल हो जाएगा,
एक अप्रोच ये है, ठीक है। इसमें जो है ना, जो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ती है, फिर उसके बाद घटने लग जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बात आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी, छोड़ो इसको, पैकिंग फ्रैक्शन, जस्ट गो बाय इट। पैकिंग फ्रैक्शन कुछ नहीं है, दे आर सेइंग कि भाई एक्चुअल लेट्स से आइसोटोपिक मास और मास नंबर है ना, तो दिस इज द लेट्स से वैल्यू दे आर कैलकुलेटिंग इट, सो वी आर लीविंग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेसन थ्योरी, न्यूक्लियर फोर्स, there is another let's say theory which is telling कि how the nucleuses are stable। तो उसमें मेसन थ्योरी है, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन इज 0 1, है ना, मतलब हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से इफ यू कैन रिकॉल, हमने जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखी हुई हैं, है ना, if we are writing somewhere let's say एक मिनट, कोई लेट्स से रिएक्शन याद करते हैं, जैसे समवेयर इट इज रिटन एज 92U235 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, यूरेनियम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख लिया क्रिप्टॉन 36 एंड लेट्स से बेरियम 56, ठीक है, 92 ये आ गया। सो वी आर गोइंग टू राइट लेट्स से समवेयर ओवर हियर 0 and 1, तो यहाँ पे I think either somewhere 85, 88 something is there. I'm just randomly writing, okay? So it could be up and down, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 146, तो कितना हो जाएगा ये? 146 plus 90, 236, 234। तो यहाँ पे अगर हमने ये ऐसा कुछ लिख लिया है, let's say, ना ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। So if we have written like this, इसको 145 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 235 plus 1, 236। टोटल मास कितना हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे? 236। दैट्स हाउ वी आर बैलेंसिंग लेट्स से रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। टोटल मास कितना हुआ? 236। टोटल चार्ज कितना हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 92। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 36 plus 56, 92। ओके, बैलेंस। 88 plus 140, 145, so we are going to see then it is going to be 233। that means there is a mass, let's say, difference of 3 let's say 3 AMU, है ना, तो उसके लिए हमने 3 न्यूट्रॉन्स लिख दिए। That's how we are going to balance the reaction, ठीक है। तो अगर यहीं पे भी है, मेसन पाई मेसन थ्योरी में भी यही है, जब भी कभी हम न्यूट्रॉन को बोलेंगे कि प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, अब न्यूट्रॉन होता है 0 चार्ज, है ना, 1 मास, प्रोटॉन होता है +1 चार्ज, 1 मास। तो इसके लिए मेसन लिख लेते हैं ना, कि ये +1 है, तो हाउ वी आर गोइंग टू लेट्स से, है ना, इसमें करेंगे तो इसमें बोल देंगे कि ये पॉजिटिव निकल रहा है, तो यहाँ माइनस नेगेटिव मेसन निकल गया, पाई मेसन। तो ये क्या कर रहा है, इसको चार्ज, केवल ये चार्ज है, देयर इज नो मास, है ना, तो इट इज गोइंग टू रिटन लाइक दिस। इसी सिमिलरली वी आर सेइंग कि जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये, है ना, ऐसे पॉजिटिव मेसन रिलीज कर देगा। एंड न्यूट्रॉन कैन एक्सचेंज इनटू न्यूट्रॉन इटसेल्फ, दैट टाइम द मेसन इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। सो दे आर सेइंग कि जो भी इंटर कन्वर्जन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ये आपस में होता रहता है और इसके कारण ये मेसॉन्स निकलते रहते हैं। एंड दैट्स हाउ द, मतलब इनके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगते रहते हैं, एंड दोज न्यूक्लियर फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड वी आर सेइंग कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर लेट्स से very dominant over 10 to -15 meter Fermi। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, राइट, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका न्यूक्लियर फोर्स कम होता जाएगा। सो दैट इज अ वन वे ऑफ सेइंग दैट, ठीक है। ये इन्होंने यही लिखा हुआ है कि प्रोटॉन 1 है एक, है ना, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन 1, ना, प्रोटॉन 1 is converting into neutron 1 and it is giving pi plus, है ना, मेसन प्लस। नहीं, बाहर नहीं निकलता है, इट रिमेन इन लेट्स से इन द न्यूक्लियस।
तो इफ यू आर गोइंग टू सी ना न्यूक्लियस में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ये बात आएगी जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे आई थिंक ये वाली बात है फिर से, बट आई एम जस्ट कवरिंग कि जो हमारे पार्ट में है वो हम कर लेते हैं। देयर इज वन थिंग इज अनदर पार्ट ऑफ फाइंडिंग स्टेबिलिटी इज दिस कर्व। तो जब भी सर फिजिक्स में पढ़ाएंगे ना, उनको मत बोलना कि हमने ये पढ़ लिया है, वो थोड़ा फिर एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, राइट। जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया। तो अब हमने क्या किया, ये जो कर्व है ये कैसे बताता है, सो वी व्हाटएवर लेट्स से नोन जितने भी आइसोटोप्स हैं, जितने भी नोन आइसोटोप हैं, उनमें हमने देखिए स्टेबल आइसोटोप कौन से हैं और अनस्टेबल कितने हैं, और उनका एक ग्राफ है ड्रॉ किया। ठीक है, सो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्राफ। जैसे हमने कार्बन में देखा, कार्बन 6C12 स्टेबल है, 6C13 स्टेबल है, 6C14 अनस्टेबल, राइट। सो वी हैव सी कि यार 6 है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हुए, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, 6, 7, 6, 8, 6, 8 वाला अनस्टेबल है, ऐसे। बीपी सर ने किया है, अच्छा, तो उन्होंने फिर बता दिया होगा ये वाली बात, ये पढ़ा दी है। हाँ, ये बढ़ा दिया है ना, तो फिर इसमें क्या बताना है, राइट। तो वी आर जस्ट लीविंग एट दिस पार्ट देन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग, उसमें कुछ खास नहीं है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। तो हमें एक स्टेबिलिटी लेट्स से बेल्ट मिल जाएगी, जिसमें हमें पता चल जाएगा ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो राइट आइसोटोप है वो स्टेबल है, और इस बेल्ट से अगर कोई चीज नीचे है ऊपर है तो वी आर गोइंग टू से कि देखो किस तरह का इमिशन होगा, राइट। सो देयर इज वन थिंग इज N/P रेशियो, है ना। N/P रेशियो हाई होगा तो कौन क्या इमिट होगा, N/P रेशियो लो होगा तो क्या इमिट होगा, ये सब फिर सर ने बता दिया होगा। यही है बस अच्छे केमिस्ट्री। तो आई थिंक दिस पार्ट इज ऑलमोस्ट डन। ये इसके क्वेश्चन लगा के देख लेना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये हाफ लाइफ वगैरह एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो वी हैव डन सरफेस केमिस्ट्री, डन दिस न्यूक्लियर लेट्स से केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो अब आती है बात, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस लेट्स से recording over here, we are making a fresh one.